Question number 8. Exercise 13.2. Question number 8. A and B independent events. Two events A and B are independent events. So here, given that A and B are independent event. Two events are independent events. Also, we are given that if two events are independent event, we can write A intersection B equal to P of A into P of B. If two events are independent events, probability of occurrence of both the events is equal to P of A into P of B. Also, we are given P of A. P of A is 0.3. P of B is given. P of B is 0.4. Find. Four questions are there. First question. First, we have to find P of A intersection B. So it is P of A intersection B. Given two events are independent events. So P of A intersection B is nothing but the P of A into P of B. Done? P of A is, what is the value of P of A? 0.3. It's a 0.3 into P of B 0.4. And therefore, this is equal to 0.12. So our first answer, P of A intersection B is 0.12. Done? Next, second part. We have to find P of A union B. P of A union B. Find P of A union B. So formula है ना, सेट थ्योरम में स्टडी किया था. It's a P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A intersection B. Now from this result 1, P of A and P of B both are given. So it's a 0.3 plus 0.4 minus 0.12. So it's a 0.70 minus 0.12. So P of A union B will be 70 में से 10, 60 and 2, 0.58. Done? So this is the answer. Question number 2. Third part, we have to find P of A by B. Conditional probability of occurrence of event A given that event B is already been occur. है ना, P of A by B. तो क्या होता है? It's a P of A intersection B divided by P of B. है ना, ये सब सारे फॉर्मूला में कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए प्रैक्टिस के लिए ये सारे सम्स है. तो ये सारे सम्स हमें करना है. So P of A by B equal to P of A intersection B upon P of B. P of A intersection B 0.12. P of B 0.4 है ना, इसको 40 भी लिख सकते हैं. तो क्या होगा? इट्स 12/40. कटिंग करो. दिस विल बी 4 से कर दो. 4 3 जा 4 10 जा 0.3. और आंसर P of A by B is 0.3. इसको हम 0.3 भी बोलते हैं कई बार. जो भी बोलना हो बोल सकते हैं, लिखना सही है. Fourth part of the sum, we have to find probability of B by A. The probability of occurrence of event B given that event A has already been occurred. So P of B by A is nothing but the P of B by A, that is nothing but the A by B upon P of A. P of A. So P of A by B 0.12. P of A है ना,
A is already been occurred. So probability of event A 0.3. So this is 12 by 30. Done. Cutting करो 3 से 3 4 जा 3 10 जा. So it's a 0.4. P of B by A है ना, और आंसर is 0.4. Done. Total 4 parts are there in our question number 8. ये हमें सॉल्व करना था. Clear? Next question, question number 9. Ninth question is A and B are two events such that P of A is given. Two events are such that P of A is 1 by 4. P of B is probability of occurrence of event B. P of B is 1 by 2. And P of A intersection B. P of A intersection B is 1 by 8. Find P. है ना, देखो क्या फाइंड करना है. Probability of not A and not B, है ना. चैप्टर प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन कॉन्सेप्ट यूज करने हैं सेट थ्योरी के, जो हमने स्टडी किए थे स्टैंडर्ड 11 फर्स्ट चैप्टर, है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को क्या लिखेंगे, ए डेस एंड मतलब ए एंड बी. सो एंड इंटरसेक्शन नॉट बी, बी डेस, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी इज नथिंग बट दी ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, ये निकालना है. डन. तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, है ना, डी मॉर्गन्स थ्योरम. सो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस इज नथिंग बट दी ए यूनियन बी होल डेस. दैट मीन्स ये निकालना है ना. तो P of A union B whole days is nothing but the, ये क्या होगा, this is nothing but the 1 minus P of A union B. Done. So what is A union B? It's a 1 minus P of A union B is nothing but the P of A plus P of B minus P of A intersection B. All these three values are given. Done. So it's a 1 minus P of A 1 by 4 plus P of B 1 by 2 minus A intersection B 1 by 8. Simplify this. It's a 1 minus, है ना, यहाँ पर 8 LCM लो तो 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8. तो 2 minus 4 minus 1 क्या होगा, minus 5 minus 3 और plus 3. So it's a 1 plus 3 by 8. ऐसा ही कुछ होगा ना. 2 4 जा 1 जा 2 4 जा, ना. ये माइनस करना था, ये माइनस, है ना. तो ये क्या होगा, ये माइनस और ये 2 माइनस माइनस 3, ये प्लस है. 2 प्लस 4 6 माइनस 1 5 5 by 8, है ना. तो 8 minus 5 by 8 3 by 8. So our answer P not A and not B is 3 by 8. Is that clear? है ना, ये प्लस था. सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है, इजी इजी करके हम यही गलती कर जाएंगे एग्जाम में देखेंगे एकदम आसान फटाफट करेंगे, और जो मैंने यहाँ पर किया ना वही आप करने वाले हो. तो लाइटली नहीं लेना है, इजी सम को फोकस करके सम सॉल्व करना है, तभी जाके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे. अदरवाइज ऐसी मिस्टेक करेंगे तो गए काम से. क्वेश्चन नंबर 10 लाइटली नहीं लेना है ना.
इजी सम को लाइटली नहीं लेना है। क्या सीखा हमने आज? कोई भी इजी सम को लाइटली नहीं लेना है। इवेंट ए एंड इवेंट बी आर सच दैट, है ना, सच दैट कैसे? पी ऑफ ए इज 1/2, पी ऑफ बी, probability of event B is 7/12, and P of, देखो अगेन, not A or not B is 1/4। तो ये क्या हो गया? नॉट A और नॉट B। सो नॉट A मीन्स A बार, और मतलब प्लस, प्लस मतलब यूनियन, है ना, A बार यूनियन नॉट B bar, this is equal to 1/4। P of A bar union B bar equal to 1/4। State whether A and B are independent, है ना, A and B independent है कि नहीं वो चेक करना है। So what we have to check? P of A intersection B is equal to P of A into P of B or not, ये चेक करना है ना, क्वेश्चन मार्क, ये चेक करना है। So let's try to check it। तो यहाँ पर, है ना, ए यूनियन बी बार है। अगेन डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे इसका। तो इट्स पी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, इट्स ए इंटरसेक्शन बी होल बार होगा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डन, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। So what is P of A intersection B? So from this we are getting P of A intersection B. P of A intersection B, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाओ, इट्स 1 माइनस 1/4। सो P of A intersection B is 4 1 जा 4 minus 1 3/4। सो P of A intersection B is 3/4। ये 3/4 आया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3/4 आना चाहिए। लेट्स चेक इट, then and there we can say given two events are independent events। So for that we are finding P of A into P of B, P of A into P of B 1/2 into 7/12, है ना, क्या होगा 1/2 into 7/12, कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला है ना, इट्स 7/24। हियर P of A intersection B is not equal to P of A into P of B, and hence we can write our answer, क्या, whether, state whether A and B are independent events। So here we are writing A and B are not independent, events, done। What is your answer? A and B are not independent events, done। Next question number 11। 11 number, given two independent events A and B, है ना, here given A and B are independent events, already given, event A and event B are independent event। So if two events are independent events, we can write P of A intersection B equal to P of A into P of B। Two events are independent events and therefore ये लिख सकते हैं। So given that two events are independent events, P of A is given, P of A is 0.3, P of B is 0.6। फाइंड, निकालो, है ना, क्या निकालना है, फाइंड करना है ना। पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, P A and B, A and B, है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए ये सब लिख के देते हैं ना। सो P of A and B क्या होता है? P of A and B कुछ नहीं होता है, P इंटरसेक्शन B होता है ना, and we are given A and B are independent events। So if two events are independent events, A intersection B is equal to P of A into P of B, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, P of A is given 0.3,
P of B is given 0.6, 0.18. Answer of first part. Done. Second part क्या निकालना है? Find P of A, P of A and not B. बोलो लो A and not B. यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद करने होंगे है ना, इसलिए मैंने वो एग्जांपल्स करवाए थे. P of A and not B. So P of A and not B. तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा बोलो, है ना. हमने एक एग्जांपल किया था, उसमें हमने स्टडी किया था कि इफ E and F both are independent events, so prove that A dash and B are independent events, B dash and A are independent events, A dash and B dash are also independent events. So here A and B are independent events, and therefore we can say that A and B dash are also independent events. So it's a P of A into P of B dash. कुशल याद आया कुछ ऐसा? एग्जाम्पल में हमने डेरिवेशन किया था, है ना. तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ए डैश एंड बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, और ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे. सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश आप पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश लिख पाएंगे. डन. तो व्हाट इज पी ऑफ बी डैश? सो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश इज 1 माइनस पी ऑफ बी. Done. Put all the values. P of A is 0.3. 1 minus P of B is 0.6. 1 minus 0.6, 0.4. 0.4 into 0.3, 0.12. तो ऐसे निकलेगा आंसर, है ना. वो कॉन्सेप्ट को याद दिलाने के लिए ये सम था. डन. तो एक एक सम करना है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगे. तो ये सेकंड पार्ट था. थर्ड पार्ट of the question. Here you have to find P, A और B. तो बोलो P, A और B क्या होता है? और मतलब यूनियन, A यूनियन B, है ना. तो हमारे पास P इंटरसेक्शन B है, P ऑफ A भी है, P ऑफ B भी है. So P of A union B is nothing but the P of A plus P of B minus P of A intersection B. Done. Put the values. P of A 0.3, P of B 0.6 minus P of A intersection B, है ना. क्या डिराइव किया था P of A intersection B? ये रहा 0.18. So 0.3060, 0.90 minus 0.18, 90 minus 80 and 72. It's a 0.72. Done. Answer of third part. Is that clear? Fourth part. Here we have to find P of neither A, neither A nor B. हमें A भी नहीं चाहिए, B भी नहीं चाहिए. तो इसका क्या मतलब हुआ? A भी नहीं and B भी नहीं. So it's a P of A भी नहीं and B भी नहीं. So it's a A bar intersection B bar. Done. So again, if A and B are independent events, which implies A dash and B dash are also independent events. So here we can say it's a P of A dash into P of B dash, है ना. So P of A dash क्या होगा? 1 minus P of A. P of B dash it's a 1 minus P of B. Done. P of A and P of B both are given. So this is equal to 1 minus P of A. P of A is 0.3. 1 minus 0.3. This one is 1 minus P of B is 0.6. So it's a 0.7 into 0.4, है ना. 7 4 जा 28. So our answer is 0.28. Answer of the fourth part is 0.28. Clear? Okay, चलो next question number 12. 12 सम, है ना. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मार्क करके रखो. पूछा
है ना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देखो अच्छी तरह से समझना है। सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अ डाई इज टॉस थ्राइस, है ना, टॉसिंग अ डाई 3 टाइम्स, है ना, डाई के अंदर ऊपर टोटल 6 फेसेस होते हैं और उसको हमें 3 टाइम्स टॉस करना है। सो डाई इज टॉस 3 टाइम्स, find the probability of getting an odd number at least one. Find the probability of getting, क्या फाइंड करना है, और favorable outcome is probability of getting an odd number, and odd number, probability of getting an odd number at least, probability of getting odd number at least once, है ना, ये वर्ड पर फोकस करो, एट लीस्ट वन। डाई के ऊपर टोटल 6 नंबर होते हैं, है ना, कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम्स आर देयर। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वन। तो ऑड नंबर्स आर 1 3 5 ऑड नंबर्स, एंड डाई इज थ्रोन, देखो डाई इज टॉस, डाई इज टॉस थ्राइस, है ना, आपको एक डाई 3 बार टॉस करना है। we have to toss one die 3 times, done, and we have to find the probability of getting odd number at least one। at least one का मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, at least, at least, at least once, at least once का मतलब ये हुआ कि आप डाई को 3 बार टॉस कर रहे हो, उसमें से मिनिमम, है ना, मिनिमम वन डाई आना चाहिए, है ना, मिनिमम वन ऑड नंबर होना चाहिए, मिनिमम वन ऑड नंबर होना चाहिए, है ना। वी हैव टू टॉस डाइस थ्राइस एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वन। आप 3 बार डाई को टॉस कर रहे हो, उसमें से एटलीस्ट एक बार, है ना, कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए। तो 3 बार डाइस को थ्रो करेंगे, एटलीस्ट वन टाइम ऑड नंबर आएगा। तो कितने केसेस हो सकते हैं, देखो एटलीस्ट वन का मतलब केस वन, केस वन, है ना, एटलीस्ट वन के लिए सपोज हमारे पास ओनली वन, 3 में से एक बार, है ना, वी आर गेटिंग ओड नंबर वन टाइम, तो एक बार ओड नंबर आएगा। डाई को 3 बार आपको टॉस करना है और एक बार, है ना, वन टाइम वी आर गेटिंग ओड नंबर। सो गेटिंग, फर्स्ट केस इज गेटिंग ओड नंबर वन टाइम, है ना। आपको क्या प्रोबेबिलिटी, क्या इवेंट चाहिए, एटलीस्ट एक बार आपको ऑड नंबर आना चाहिए। तो हमने अज्यूम किया कि चलो केस वन, है ना, गेटिंग ऑड नंबर वन टाइम, 3 बार आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, 3 में से एक बार आपको ऑड नंबर मिल रहा है, डन। केस टू, केस टू क्या हो सकता है, देखो वी रिक्वायर एटलीस्ट वन, मिनिमम वन। तो मिनिमम वन का मतलब ये हुआ कि आप 2 बार, है ना, डाई को आप 3 बार टॉस कर रहे हो, तो उसमें से 2 बार आपको ऑड नंबर मिल रहे हैं। सो गेटिंग, गेटिंग ऑड नंबर 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आपको ऑड नंबर मिलेंगे, गेटिंग ऑड नंबर 2 टाइम्स, है ना, एटलीस्ट, एटलीस्ट वन। तो आपको 3 बार जो डाइस थ्रो कर रहे हो उसमें से आपको एक बार ऑड नंबर मिलेगा, या फिर दूसरा केस हो सकता है कि आपको 3 में से 2 बार ऑड नंबर मिलेंगे, है ना। और केस थ्री, केस थ्री भी हो सकता है क्या, कि आप डाई को 3 बार टॉस कर रहे हो, है ना, थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाई थ्राइस, आप डाई को 3 बार टॉस कर रहे हो, तो आप तीनों बार ऑड नंबर अचीव कर रहे हो। सो गेटिंग, गेटिंग ऑड नंबर 3 टाइम्स, डन। तो टोटल 3 केसेस आर देयर, throwing a dice thrice, है ना, और random experiment is throwing a dice thrice, thrice मतलब 3 टाइम। So what is the probability of getting odd number at least one? तो 3 बार आप डाई को थ्रो कर रहे हो, उसमें से हमें odd नंबर लाना है ना, at least once, कम से कम एक बार। सो मिनिमम वन टाइम मीन्स वो एक बार भी आ सकता है, या फिर 2 बार भी आ सकता है, या फिर 3 बार भी आपको odd नंबर आ सकता है, डन। सो नाउ इतने केसेस समझ में आ गए। नाउ लेट्स कंसिडर फर्स्ट केस, है ना, फर्स्ट केस अज्यूम करें कि जिसके अंदर हमें, है ना, 3 बार डाई को थ्रो कर रहे हैं, वी आर थ्रोइंग अ डाई 3 टाइम्स एंड वी आर गेटिंग ओनली वन टाइम ओड नंबर।
तो कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? देखो, वी आर गेटिंग ऑड फर्स्ट टाइम और बाकी के 2 टाइम हमने इवन नंबर मिले। हमारे पास एक की डाइस है, वो डाई को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, है ना? तो फर्स्ट केस कौन सा आ सकता है कि हम 3 बार जो टॉस कर रहे हैं उसके अंदर हमें एक बार ऑड नंबर मिल रहा है, तो उसके अंदर भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगी, है ना? फर्स्ट ट्रायल में आपको ऑड नंबर मिल जाएगा, बाकी के 2 ट्रायल में आपको इवन नंबर मिलेगा, है ना? एक बार ऑड नंबर लाने के लिए। दूसरा केस क्या हो सकता है? और दूसरा केस क्या हो सकता है? आप डाइस को 3 बार टॉस करेंगे, पहली बार आपको इवन नंबर मिलेगा, दूसरी बार ऑड मिलेगा और तीसरी बार इवन मिलेगा। डन। और तीसरा केस 1 बार ऑड नंबर लाने के लिए क्या हो सकता है? ऑन द फर्स्ट ट्रायल वी आर गेटिंग इवन नंबर, डाई को दूसरी बार थ्रो किया, फिर से इवन नंबर मिला, डाई को तीसरी बार थ्रो किया, तब जाके हमें ऑड नंबर मिल गया। तो दिस इज मिनिमम 1 टाइम वी आर गेटिंग द ऑड नंबर, है ना? इतने केसेस हो सकते हैं। या फिर और, है ना? या फिर क्या हो सकता है? वी आर गेटिंग ऑड नंबर 2 टाइम्स। सपोज हमें 2 टाइम ऑड नंबर मिल रहा है, तो क्या होगा? पहली बार ऑड, दूसरी बार भी ऑड और उसके बाद इवन मिला। या फिर क्या हो सकता है? ऑड मिला, इवन मिला, उसके बाद ऑड मिला, या फिर पहले इवन मिल गया, उसके बाद 2 ऑड नंबर मिले। डन। ये केसेस हो सकते हैं, है ना? गेटिंग ऑड नंबर 2 टाइम्स, है ना? डाइस को 3 बार टॉस करने से हमें ऐसा भी हो सकता है कि हमें तीनों बार ऑड नंबर मिले, तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी? ऑड ऑड ऑड, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। So these are the different cases in which we are getting odd number at least 1. So now we have to calculate the probabilities. So what is the probability of getting number 1? So probability of this event E, odd, है ना? odd या फिर even आने की probability कितनी होती है? 1/2, है ना? ये पूरी इवेंट एक साथ में होती है ना, throwing a dice thrice, तो एक साथ में होगी, तो odd मिलेगा and even मिलेगा and even मिलेगा, तो इट्स अ मल्टीप्लीकेशन 1/2 1/2 1/2, ये मिलेगा। और या फिर ये केस हो सकता है तो प्लस आएगा, प्लस इसका एडिशन क्या होगा? 1/2 1/2 1/2, और या फिर ये केस होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो इसका क्या हो गया? 2 2 जा 4, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, so probability of getting this output is 3/8. डन। ये होगा केस 1 होगा। या फिर और या ये केस होगा, इसमें प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें, है ना? एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटीज, हर एक इवेंट का आपको आउटपुट कम करना है, तो ओड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2, ये इवेंट आएगी। या फिर, है ना, 2 बार ओड आएगी तो ये भी इवेंट आ सकती है, तो इट्स 1/2 1/2 1/2, या फिर ये 1/2 1/2 1/2, तो एक भी क्या हो गया? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो गई 3/8। डन। उसके बाद थर्ड केस, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 ओड नंबर, तो ये केस हो सकता है, या फिर ये केस हो सकता है, और ये भी केस हो सकता है। तो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम इज 1/2 1/2 1/2, तो ये हो गया 1/8। सो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट 1, तो तीनों केसेस हो सकते हैं। केस 1 हो सकता है, या फिर केस 2 होगा, या फिर केस 3 होगा। सो आवर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इज, है ना, सब और वाले हैं तो ऐड करना है, 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, एंड दिस इज इक्वल टू 8 LCM, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 7/8 is the probability of getting odd number, probability of getting odd number at least once. क्लियर कुशल? समझ में आ गया, है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मार्क करके रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 और 12 को हम फिर से, है ना, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 2 balls are drawn at randomly with replacement। देखो विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या हुआ? टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना? 2 balls are drawn at randomly with replacement, दैट मीन्स पहले आपको एक बॉल सिलेक्ट करना है, उसके बाद दूसरा बॉल सिलेक्ट करना है। जब आप दूसरा बॉल सिलेक्ट कर रहे हो तो पहला जो सिलेक्ट किया हुआ बॉल है वो आपको वापस बॉक्स में रख देना है,
उसको बोलते हैं with replacement. So two balls are drawn at randomly with replacement from the box. That box contain 10 black balls. Number of black balls are 10, and number of red balls are 8. Done. A box contain total 18 number of balls. टोटल कितने बॉल्स है 18. Out of 18 ball, number of black balls are 10 and number of red balls are 8. 8 red ball है and 10 black ball है. We have to select two balls with replacement. Done. एक को सिलेक्ट किया, उसके बाद दूसरे को सिलेक्ट करना है. बट जब दूसरा बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं तब पहला जो सिलेक्ट किया वो बॉल है उसको हमें वापस बॉक्स में रख देना है. So find the probability of first. Total 3 cases are there. First case, find the probability that both balls are red. Both balls are red. है ना. तो इवेंट ए सपोज फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल is red, and event B, second selected ball is red. So you have to find the probability of occurrence of both the events A and B. So both selected balls are red, that is P intersection B, that is without with replacement. So if when we are selecting ball A, so what is the probability of selecting ball A? Red ball. So total number of red balls are 8 divided by total number of balls 18. 8 by 18. Then we have to select again red ball, बट रिप्लेसमेंट हो चुका है. पहली बार जो रेड बॉल सिलेक्ट किया उसको हमने वापस रख दिया है. तो दूसरी बार भी जब हम रेड बॉल सिलेक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स बॉक्स के अंदर 80 होंगे और उसको फिर से टोटल नंबर ऑफ 18 बॉक्स में सिलेक्ट करना है. तो इट्स 8 by 18 into 8 by 18. डन. सिंप्लीफिकेशन करो तो 4 9 4 9 4 4 जा 16 by 81. So probability of selecting both red balls is 16 by 18. आया समझ में. विथ रिप्लेसमेंट बोला है ना. तो पहली बार सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जब दूसरी बार सिलेक्ट करने जा रहे हो उसके ऊपर इवेंट ए की कोई इफेक्ट नहीं आएगी क्योंकि वो बॉल हमने वापस रख दिया है. क्वेश्चन 2. फर्स्ट बॉल इज ब्लैक है ना. इवेंट ए फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ब्लैक एंड इवेंट बी सेकंड सिलेक्टेड बॉल इज रेड. उसके बाद दूसरा रेड सिलेक्ट करना है ना. विथ रिप्लेसमेंट जो भी बॉल सिलेक्ट किया उसको वापस रख देना है बॉक्स के अंदर. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी occurrence of both the events simultaneously? First ball black, second ball is red. So probability of occurrence of event A and B, A intersection B, it's a P of A into P of B है ना. multiplication theorem because it is without replacement, independent events are there. तो पहली इवेंट ब्लैक बॉल सिलेक्ट करना है. सो ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 10. टोटल कितने बॉल्स है 18. उसके बाद ब्लैक बॉल सिलेक्ट किया उसको वापस बॉक्स में रख दिया. उसके बाद दूसरा बॉल सिलेक्ट करना है. कौन सा बॉल सिलेक्ट करना है रेड बॉल. सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 8 है ना. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बॉक्स अगेन 18. डन. कटिंग करो 4 9 5 9 4 5 जा 20 अपॉन 9 9 जा 81. उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 20 अपॉन 81. 20 upon 81. Done. These are the independent events because we are given we have to select the balls without replacement, sorry with replacement. Done. third part देखो कैसे होगा. Here one of them is black and other is red है ना. one of them red. तो क्या हो सकता है देखो हमें दो बॉल सिलेक्ट करने हैं उसमें से एक ब्लैक होगा एक रेड होगा. तो ऐसे प्रोबेबिलिटी आएगी कि पहले हमने सिलेक्ट किया तो पहले रेड बॉल आएगा उसके बाद ब्लैक बॉल आएगा. और दूसरा केस क्या होगा कि पहले ब्लैक बॉल आएगा उसके बाद रेड बॉल आएगा. टू पॉसिबिलिटीज आर देयर. वी हैव टू सिलेक्ट टू बॉल्स एंड वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अनदर इज रेड. एक बार रेड आना चाहिए और एक बार ब्लैक आना चाहिए. तो दो केसेस हो सकते हैं. पहली बार रेड आएगा और दूसरी बार ब्लैक बॉल आएगा. या फिर क्या हो सकता है पहली बार जब बॉल सिलेक्ट करेंगे तो ब्लैक आएगा उसके बाद दूसरी बार रेड आएगा. सो टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर देयर. सो हियर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग दिस रेड बॉल फ्रॉम द बॉक्स.
है ना, विथ रिप्लेसमेंट है, तो बॉक्स के अंदर टोटल 18 बॉल ही है, उसमें से रेड सिलेक्ट करना है। तो इट्स रेड बॉल के लिए 8/18 प्लस ब्लैक बॉल के लिए इंटू आएगा, इंटू ब्लैक बॉल के लिए 10/18 प्लस ब्लैक बॉल अगेन इट्स 10/18 इंटू रेड बॉल 8/18। डन। तो सिंप्लीफिकेशन करो, 8/18 इंटू 10/18 तो होगा 5/9 20/81। So 20/81, this one is again 20/81. So 81 is the LCM. So our answer will be 20 plus 20, 40/81. So probability of selecting one of them is black and one of them is black and another is red is 40/11. Sorry, 40/81. Done.